Namaskar. Today we are going to talk about the attributes of Pandas series. And apart from that, I'll be telling you different ways to access the elements from a series like log, ilog, at, iat, and there are certain conditions too with the help of which we can fetch the elements from a series. Apart from that, we'll be discussing about how to add and remove the elements in a series. And side by side, I'll be telling you that series is data mutable and size immutable. And at the end, I'll be telling you that how to re-index the series and how to reset the index. So watch the video till the end to understand each and every topic practically. Let's go on. Let me take one series. So this is my series having four elements and having the four indexings A, B, C, D. Right? Now let me just execute it first so that I can show you that this is my series. All right. Um, okay. Now I want to assign a name to my series, right? So what can I do for that? I can write over here s dot name is equal to um, number, right? Now let's check the difference in the output. Name is my attribute through which I can assign the name to my series. So let's run it now. As you can see at the bottom of my output, name numbers has appeared. That my series name is numbers. Okay. Similarly, what can I do? I can assign the name to my indexes also. So for that, what do I need to do? I need to write dot index dot name. So my indexes are alphabets. So I can write over here alphabets, right? Let's check it out. Just check it. Now alphabets is not appearing at the place of name. Why? Because this name is concerned with the series name and this alphabet is my index heading. That means my indexes are of type alphabets. So I have given a name to my indexes, nothing else. Okay. Next thing which we can do over here is that I can calculate what is the size of my series, what is the shape of my series, whether my series is containing null values or not. Okay, whether my series is empty or not. So there are lots of attributes for the thing. So if I wish to find out that what are the values which are there into my series, for that we have values attribute. Okay, let's check it out. Or I can, let me mark it as this as well. Values are. So let me run it. So I got the values. Now the values are 10, 20, 30, and 40. A, B, C, D are not displayed because A, B, C, D are my indexes, not the value. Okay. Similarly, if I want to display only the indexes, so I have index. Okay. And I can change my caption over here. Indexes are. Now let's run it again. So indexes are these. Okay. And the type is also given over there that indexes are of type object since this is ABCD. So this is how we can bifurcate my values and my indexes so that I come to know that what type of values are there and what type of indexes are there in my series. Now, next thing we can find out that what is the size of my series. Okay, so we can change the caption over here as size is. Okay, similarly, I can have the shape also, that what is the shape. Since shape does not much matter over here because my series is one dimensional, but still I would like to show it to you so that you come to know before studying data frames. Okay, and then I will check whether it is empty or not. Is it empty? Okay, now run it.
So as you can see over here that values are displayed, indexes are displayed, then what is the size of my series? 4. Because since I have 4 values in my series, right? And what is the shape? 4. Comma blank. Why is that so? Because there is no particular extra column. Because in the beginning I told you that size is immutable. So size is related to two components. One is related to the column because since this is one dimensional, so we cannot add more columns into my series. That's why it is immutable. Second is when we talk about the length of the series, then also it is actually immutable, which is not visible at all. If I change the size of my series, it will be showing me the same address again and again. Whether I remove any element from the series or I add any element into the series, it will be showing me that changes are happening at the same memory location once I type the ID of my series. Okay, but internally it does not happen. Internally, every time another object is created, but then the changes are copied back to the same memory location. So an illusion is created that it is mutable, but otherwise size is immutable. So is this empty? No. So that's why it is showing me false. It is not empty at all, right? Now let's go back up. One more thing which can be done over here. Does my series contain any nan value? Okay, so I can have has nans. Okay, is it containing nan? Okay, let's run it. So it's showing me false. There is no nan value into my series. Well, let's define one nan value so that I can check the authenticity of my has nans, right? So there is one nan value. Check it. It's true now. The last portion, is it containing nan? Yes, it is containing. Containing is spelling galat ho gayi. I'm really sorry for that. So why true? Because at least one value is there. कोई तो एक वैल्यू नैन है तो हमारा जो ये ऑपरेशन था एट्रीब्यूट वाला हैज नैन्स यस इट इज हैविंग नैन्स so these are the attributes which we can apply onto our series to calculate the size, to calculate the shape, to check whether it is empty or not, whether it has non values or not, right? Or we can have the values and what type of indexes we. And even we can assign the names to our series and even the name to my indexes. Okay, so let's move ahead. So let me clear it out. अब हमें क्या करना है, एक नैन वैल्यू को हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे और लेट मी मार्क इट एज 30 ओनली. इंडेक्सेस को क्लियर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेबल्ड इंडेक्सेस में आई विल बी टेलिंग यू. So if I want to access any element, I taught you in my previous video that I can have direct indexing over there. मैंने एक इंडेक्स दे दिया 1, तो 1 इंडेक्सिंग पे मेरा एलिमेंट क्या है 20. So it should be printed, right? Let's see. I got the result as 20. No issues in that. But if I go with negative index, will it work? It won't work. I showed you this error in my previous video as well, that negative indexing पे direct square brackets will not work. For that, I have the functionality lock and ilock. Now, what is lock and ilock? Lock is concerned and related with my labeled indexes, and ilock is related to my position indexing. That means index location and only the location. So since I have not assigned any label to my series, so if I want to access -1, I have to use ilock method. That means index location -1 of the series. Now it will perfectly work and will give me the result as 40. It is in front of me. Okay.
So this is the beauty of lock and iLock. Directly, I cannot fetch out my negative indexing, but yes, with the help of iLock method, I can have that. Similarly, if I want iLock more than one element, ठीक है, मैंने किया -3 to till the end. अब -3 मेरा क्या है 20, 20 से लेके आगे तक, दैट मीन्स आई एम मूविंग लेफ्ट टू राइट. तो इसमें मुझे स्टेप वैल्यू -1 डिफाइन करने की जरूरत नहीं. इट इज द पॉजिटिव इंडेक्सिंग वन. So let's just check it. What is the difference in the output? Now my three elements are displayed and in the form of a series. And when I access my one particular element, it displayed in this way, right? So when we access more than one element from my series, so it will be displayed in the form of a series having the D type along with. So we need to take care of such things while attempting find the output questions. Now let me just assign the indexes to my series. Right, these are my indexes. अब indexes को fetch out करने के लिए I have lock method also, but if I say only A, then also it will work perfectly. My output is 10, right? And if I do it with the help of lock, then also it will work in this way. Similarly, if I wish to have multiple things like D ले लेते हैं because I have limited number of values, then it will behave in the same way as I did. But observe the difference. Now, when I say that print s dot iLock off, now how many indexes are there? 4. So 0 to 3 range will be applicable onto that to fetch out all the elements, right? Now, where is the difference between lock and iLock? Okay, एक difference मैंने आपको बताया कि lock is for the labeled indexes and iLock is for the positional indexes, right? But there is one more difference between these two methods. So let's observe it with the help of the output. So here is an output. अब आप ये देखेंगे कि in iLock, I said 0 to 3. So how many values are printed? 0, 1, 2. That means it is leaving the last index. It is particularly following the slicing method that last value is not included. तो इसने 3 को include नहीं किया. लेकिन अगर हम लॉक की बात करें तो लॉक ने पूरे लेबल्ड इंडेक्सेस को इंक्लूड किया है. इट हैज नॉट लेफ्ट दिस डी विच इज रिटन एट द एंडिंग पोजीशन. हियर हमने क्या लिखा है ए टू डी, तो उसने पूरा का पूरा ए टू डी कंसिडर किया है. लेकिन यहां पर आई लॉक में क्या हुआ है 3 को इग्नोर कर दिया. So there are two particular differences between lock and iLock. One is labeled indexes, positional indexes. Second one is that in lock we include starting and ending position both, but in iLock we include the starting position, not the end one. All right. अब हम बात करेंगे. There are two more methods actually to access the elements. अब होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 या बिलियन रोज है ना, लाख्स में है, सब कुछ है. अब मुझे एक ओवरव्यू देखना है अपनी सीरीज का कि हाउ डज माय डेटा लुक लाइक. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पूरी की पूरी सीरीज को डिस्प्ले कर दूं जिसमें 1 लाख रिकॉर्ड्स है, तो इंटरप्रेटर विल ऑल्सो टेक टाइम टू फेच आउट ऑल द रिकॉर्ड्स. ठीक है, ऑल्दो ये बहुत जल्दी कर देता है, दैट वी हैव लर्न्ड इन द बिगनिंग कि दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ फेचिंग आउट द रिकॉर्ड्स. बट स्टिल वाई टू ओवरबर्डन द इंटरप्रेटर. तो हम क्या करते हैं, दो मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हेड एंड टेल, कि मुझे स्टार्टिंग की वैल्यूज पता चल जाए सीरीज की या मुझे बॉटम की वैल्यूज पता चल जाए. ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा हेड टू. हेड टू का क्या मतलब है, फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स विल बी फेच्ड आउट एंड विल बी डिस्प्लेड ऑन टू दी आउटपुट स्क्रीन. तो एक बार डिस्प्ले करते हैं. अब मेरे 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए कि A10 B20. मुझे एक आइडिया मिल गया कि मेरा डेटा किस टाइप का है सीरीज के अंदर. ठीक है, उसके बाद आई कैन परफॉर्म दी ऑपरेशंस. सिमिलरली इफ आई से टेल 2, तो मेरे बॉटम 2 रिकॉर्ड्स उठ के आ जाएंगे. ठीक है, तो इसको रन करते हैं. ओके, तो मेरे बॉटम 2 रिकॉर्ड्स कौन से थे, 30 एंड 40, जो यहाँ डिस्प्ले हो गए.
सो देर आर टू मेथड्स, हेड एंड टेल। काउंट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर मुझे काउंट करना है हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, हाउ मेनी वैल्यूज आर अवेलेबल इनटू माय सीरीज, सो आई हैव द काउंट मेथड. I can display it very easily that there are 4. Okay, and the alternative method of having count is my size या shape, क्योंकि shape का first argument is the number of rows and the second argument is number of columns. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ शेप लिखूं, क्योंकि साइज में क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे. ठीक है, डेटा फ्रेम में इट मेक्स अ डिफरेंस, नॉट इन द सीरीज. ऑलराइट, तो अगर मैंने यहाँ शेप लिखा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 comma. That means 4 number of rows and there is no particular extra column because since your series is one dimensional in nature. Alright. Shape के बाद अब हम बात करेंगे relational operators की. That means how to fetch out the elements with the help of any condition. Right. तो अब क्या करेंगे इसके प्लेस पर, है ना. इंडेक्सिंग हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में अब एक इंडेक्सिंग लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, एक रिलेशनल ऑपरेशन दे देंगे. ठीक है, अब पहला हम बात करते हैं कि मुझे एलिमेंट्स वही प्रिंट कराने हैं जो कि इवन है ना. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज माई कंडीशन टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड. अगर वो इवन है तो प्रिंट हो जाएगा, ऑड है तो नहीं प्रिंट. तो लेट्स रन इट वन. तो मेरे सारे एलिमेंट्स यहाँ डिस्प्ले हो गए बिकॉज एवरी एलिमेंट इज इवन. यहाँ एक बार एक एलिमेंट को चेंज करके देखते हैं. लेट्स मेक इट 23. तो मेरा 23 यहाँ प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज दैट इज ऑड. ओके, अब वापस इसको 0 बना देते हैं. देन विल टॉक अबाउट कि मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो 20 से ऊपर हैं तो ही प्रिंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. राइट, तो हमने चेक किया 30 and 40. We are not including 20 because we are talking about greater than 20, not greater than equal to 20. If I change it equal to, then it will make a difference like this. Okay, and if I say is equal to 20, then how does it work? This way, only 20 has been printed. So this is how we fetch out the values with the help of conditions, right? अब इसके बाद हमारा एक और मेथड आता है. अगर हम बात करें आई लॉक और लॉक के बारे में हम बात कर चुके हैं टू फेच आउट दी डेटा. राइट, अब हमारे दो मेथड्स आते हैं, आई एट एंड आई एट. ओके, इंडेक्स एट एंड एट, दोनों में वही डिफरेंस है जो हमारा लॉक और आई लॉक में था. अब लॉक आई लॉक एंड आई एट और एट में डिफरेंस क्या है कि एट एंड आई एट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ फेचिंग आउट दी एलिमेंट्स. राइट, तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि मैंने यहाँ लिखा एस डॉट एट 1 और आई कैन से बी. राइट, क्योंकि हम यहाँ पे भी इंडेक्स लोकेशंस की बात करते हैं, लेबल्ड इंडेक्सेस की बात करते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया 20. बी की वैल्यू क्या है 20. इफ आई से आई एट, ठीक है, तो आई एट में हम कोई इंडेक्सिंग दे सकते हैं. अब इंडेक्स हमने दे दिया फॉर एग्जाम्पल 3. ओके, तो थर्ड लोकेशन पे क्या है 0 1 2 3. 40 मस्ट बी प्रिंटेड. लेट्स चेक इट, 40 हैज बीन प्रिंटेड. ठीक है, अब यहाँ मैंने दिया सॉरी, स्टार्टिंग पोजीशन आई हैवंट मेंशन बट द एंडिंग पोजीशन आई हैव मेंशन. अब यहाँ क्या होगा, आई लॉक और लॉक में तो ये वर्क करता है, आई एच में वर्क करेगा, चेक कर लेते हैं. It is not giving me the value. Instead, it has displayed the error. Why so? Because iat and at is only used to fetch out one particular value, not multiple values. अगर multiple values को आपको fetch करना है तो we have the method ilock and lock, right? So we have talked about all the methods of fetching out. Let's move on. हम बात करते हैं how to add or remove the element from the series. अब हमने बात की कि हमारी जो सीरीज है वो डेटा म्यूटेबल है और साइज इम्यूटेबल है. ठीक है, तो डेटा इम्यूटेबल क्यों है, डेटा म्यूटेबल क्यों है, क्योंकि आई कैन मॉडिफाई माई एलिमेंट्स. तो अगर मैं यहाँ लिखूं एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 90, तो क्या होगा, बी की वैल्यू अभी क्या है 20.
अब वो 20 से रिप्लेस होके क्या हो जाएगी 90। प्रिंट कर देते हैं एक बार एस को, ठीक है, एंड लेट्स ऑब्जर्व द चेंज। अब मेरी सीरीज में 20 के प्लेस पे क्या आ गया 90। दैट मीन्स इट इज मॉडिफाइबल, है ना। और मेरे जो सीरीज का एड्रेस है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इंटरनली ऑल्सो देर इज नो न्यू ऑब्जेक्ट जनरेटेड, सेम लोकेशन पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं ऐड और रिमूव करूंगी तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेरा एड्रेस तो सेम रहेगा, क्योंकि वो एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सीरीज म्यूटेबल है, नहीं, वो इम्यूटेबल ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नया क्रिएट हो रहा है, चेंजेस होने के बाद वापस से वहां पे कॉपी पेस्ट हो रहा है सेम मेमोरी एड्रेस पे, ठीक है। तो जब वो कॉपी पेस्ट हो जाता है तो हमें जो विजिबिलिटी आती है अपने एड्रेस की वो वही आती है जो कि चेंजेस करने से पहले थी, लेकिन एक्चुअली इंटरनली चेंजेस कहाँ हो रहे हैं नए ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब हमने मॉडिफाई करके देखा, अब हम क्या करेंगे, एक नया ऑब्जेक्ट, सॉरी एक नया एलिमेंट हम यहाँ क्रिएट करते हैं, ई ले लेते हैं और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 20, ठीक है, क्योंकि 20 ऑलरेडी है, हम 20 दोबारा भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको रन किया और मेरी सीरीज बन गई हैविंग 5 एलिमेंट्स, मतलब एक और एलिमेंट इसमें ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक बार रन करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं आईडी ऑफ एस, ठीक है, और इसके बाद प्रिंट करने के बाद अगर मैं आईडी ऑफ एस लिखूं तो मेरे आउटपुट पे क्या डिफरेंस आएगा, देखो। चेंजेस करने से पहले एड्रेस क्या था, यही था, चेंजेस करने के बाद भी सेम एड्रेस है। तो एड्रेस सेम देख के आपको क्या लगेगा कि साइज की जो डेटा है, मतलब जो साइज है सीरीज का वो म्यूटेबल है, क्योंकि सेम एड्रेस पे चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, लॉजिकली ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, साइज इज ऑलवेज इम्यूटेबल इन सीरीज, ऑलराइट। ये तो था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जिसके थ्रू मैंने एक नया एलिमेंट जनरेट कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरी सीरीज लेते हैं, S1 इज इक्वल टू, लेट मी टेक इट कंप्लीटली, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दो इंडेक्सेस दे दिए क्योंकि मैं दो एलिमेंट्स को ऐड करना चाह रही हूँ। दो इंडेक्सेस लिए और यहाँ पे दो वैल्यूज ले लिए, ठीक है। ले लेते हैं 50 एंड 60, ऑल राइट। मेरी दूसरी सीरीज भी रेडी हो गई। अब मुझे क्या करना है, f is equal to pd dot concat. Now concat is a method through which I can combine two series together, ठीक है। अब वो सीरीज मेरी एक से ज्यादा एलिमेंट की भी हो सकती है या हैविंग अ सिंगल एलिमेंट ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। So I'll be writing S comma S1, but जब मुझे दो चीजों को कंबाइन करना है तो मुझे उन्हें लिस्ट के फॉर्मेट में लेना पड़ेगा, है ना। अब मैंने किया प्रिंट S, अब मेरी दोनों जो सीरीज हैं वो कंबाइन हो चुकी हैं एंड आई विल बी गेटिंग द आउटपुट S। तो एक बार चेक करते हैं, मेरी पूरी सीरीज आ गई। ABCD वॉज माई अनदर सीरीज एंड E and F वॉज माई अनदर सीरीज, राइट, और दोनों कंबाइन हो गया A to F. So this was another method of adding the elements into my series. All right. लेकिन concat के केस में क्या होगा कि मेरी एक दूसरी सीरीज जनरेट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया, दोनों को कंबाइन करके असाइनमेंट के थ्रू एक और सीरीज में इनपुट कर दिया। अब जो S है, ऑल्दो मैं जो असाइन कर रही हूँ वो S के अंदर ही कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एड्रेस चेंज हो चुका है, ठीक है। अब एक और फंक्शन होता है हमारा अपेंड, जो हम लिस्ट में भी यूज करते थे, लेकिन पांडास में अगर आप 2.0 प्लस वर्जन यूज कर रहे हो तो जो अपेंड है वो वर्क नहीं करेगा। उससे पुराने वाले वर्जन्स पे अगर आप अपेंड को ट्राई करोगे तो अपेंड विल वर्क। तो अगर आप किसी भी बुक में या रेफरेंस बुक में अपेंड की फंक्शनैलिटी देख रहे हो तो वो वर्क करती थी, बुक गलत नहीं है, राइट। लेकिन अब 2.0 प्लस वर्जन्स में अपेंड इज नॉट वर्किंग, सो डोंट बी कंफ्यूज। अगर आपको अपेंड यूज करना है, concat इज द बेटर सप्लीमेंट फॉर दैट, ऑलराइट। अब हम बात करेंगे, ये तो था हमारा कि हमने ऐड कैसे करना है एलिमेंट को। नाउ विल लर्न दैट हाउ टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द
सीरीज। तो कॉन्कैट हम रहने देते हैं, नॉट एन इशू। ठीक है, मेरी एक पूरी सीरीज बन चुकी है। अब मुझे एलिमेंट को रिमूव करना है। देयर आर थ्री फंक्शंस बेसिकली, पॉप, डेल एंड ड्रॉप। ओके, अब ड्रॉप पॉप और डेल से कैसे डिफरेंट है वो हम बात करेंगे अभी। अब मैंने क्या किया, एस डॉट पॉप। अब मुझे क्या एलिमेंट रिमूव करना है, लेट्स से मुझे 20 को रिमूव करना है। ठीक है, तो 20 का जो इंडेक्स पोजीशन है वो क्या है, बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बी ले लिया एज एन आर्गुमेंट, क्योंकि पॉप ये जो जितनी भी फंक्शनैलिटीज है ये इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट को रिमूव करेगी, है ना। हम डायरेक्टली एलिमेंट को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा आफ्टर अप्लाइंग पॉप, है ना। तो मेरी लिस्ट क्या है, पॉप करने के बाद मेरी लिस्ट क्या है, बी रिमूव हो चुका है। ठीक है, ए यहाँ पर आ चुका है क्योंकि मेरी जो इंडेंटेशन है वो ऐसी ही हो गई है क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन में उसको शिफ्ट नहीं किया। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देंगे तो मेरी परफेक्ट आउटपुट आएगी नेक्स्ट लाइन से। ऑलराइट, बी रिमूव हो चुका है। ठीक है, और ये डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरा इंडेक्स है वो रीजनरेट नहीं होगा, वो रिफ्रेश नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। जो एलिमेंट रिमूव हुआ है उसके साथ उसका इंडेक्स भी रिमूव हो चुका है। ओके, अब हम रिमूव करेंगे डेल के थ्रू, डेल एस ऑफ ई। ठीक है, अब मैंने ई को रिमूव करना है और मैंने यहाँ प्रिंट किया आफ्टर अप्लाइंग डेल, व्हाट इज माय एस। तो एक बार देखते हैं आउटपुट। अब मेरा ई भी रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो ये मेरा डेल वाला फंक्शनैलिटी, मतलब डेल और पॉप दोनों एक ही जैसे बिहेव कर रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस, ओनली द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे ड्रॉप की। ठीक है, ड्रॉप थोड़ा सा डिफरेंट है, एक बार देखेंगे। एस डॉट ड्रॉप, ड्रॉप में मैंने लिखा लेट्स से मुझे सी रिमूव करना है ना, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आफ्टर अप्लाइंग ड्रॉप, ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इन सबको कमेंट मार्क कर देती हूँ, है ना। बार बार क्यों इंटरप्रेटर को परेशान करना है हमें। तो आफ्टर अप्लाइंग ड्रॉप क्या होगा, अब पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये मेथड वर्क करेगा ऐसे या नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बार रन करते हैं। ये मेथड वर्क नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी सीरीज उठ के यहाँ पे टाइप हो चुकी है, आफ्टर अप्लाइंग ड्रॉप ऑल्सो एंड बिफोर अप्लाइंग ड्रॉप ऑल्सो। दैट मीन्स कोई डिलीशन परफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट में एस को प्रिंट कर रही हूँ वो मेरी प्रीवियस सीरीज को ही प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है ये नल एंड वॉइड हो चुका है, राइट। अब इसको परफॉर्म करने के लिए हमारा एक आर्ग्यूमेंट आता है, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का क्या मतलब है कि परमानेंटली उस चीज को कर दो, रिमूव कर दो वहां से। ठीक है, अब एक बार दोबारा अप्लाई करते हैं, सी इज रिमूव। So this is basically the difference between pop, del and drop, right? जब तक हम यहाँ in place is equal to true नहीं लिखेंगे मेरा एलिमेंट रिमूव नहीं होगा। अगर मुझे यहाँ in place is equal to true नहीं लिखना है तो I have another method in this way कि मैंने लिखा s is equal to f s dot drop c, तो भी मेरा एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक बार रन करते हैं एंड इट इज हैपनिंग। ओके, सी यहाँ भी रिमूव हो चुका है। So there are two ways, either you assign this or you use in place is equal to true। अब in place is equal to true का क्या मतलब है कि जिस मेमोरी लोकेशन पे आपकी सीरीज है वहीं से ही उसी मेमोरी लोकेशन से आपका एलिमेंट रिमूव हो रहा है। लेकिन असाइनमेंट करने का मतलब है एक नई सीरीज को क्रिएट करना। ये डिफरेंस आता है दोनों चीजों में, राइट। तो हमारे कौन से मेथड्स हुए, पॉप, डेल एंड ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप में हमें याद रखना है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू इज मैंडेटरी इफ यू वांट टू मेक द चेंजेस एट द सेम मेमोरी लोकेशन। ऑलराइट, अब ये सब करने के बाद
अब हम क्या करेंगे ना कि ये सारे चेंजेस को भी परफॉर्म कर देते हैं, है ना, इनको रिमूव नहीं करेंगे। अब अगर आप आउटपुट देखोगे, अगर मैं इन सबको एक बार में परफॉर्म कर दूं, तो मेरी जो लास्ट में सीरीज बच के आ रही है वो ये आ रही है ना। और इसका जो इंडेक्स है वो क्या हो चुका है, ADF। ठीक है। अब इसके बाद ये सब करने के बाद मैं दो तीन एलिमेंट्स और ऐड कर देती हूँ। एस ऑफ, हमने सी रिमूव किया था, है ना, तो मैंने सी में 70 को ऐड कर दिया। हमने बी रिमूव किया था आई गेस, तो बी एक एलिमेंट हम जनरेट कर देते हैं जिसकी वैल्यू 40 ले लेते हैं, एंड देन प्रिंट एस। अब ये मैं क्यों कर रही हूँ, इसका एक पर्पस है। अब मेरे जो इंडेक्सेस हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इंडेक्सेस कभी भी रीजनरेट नहीं होते, रिफ्रेश नहीं होते जब तक हम उसे करेंगे नहीं। ठीक है। तो मेरा जो इंडेक्स है वो क्या आ गया, ABDFCB। मुझे क्या चाहिए, ABCDF सीक्वेंस में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एस में री इंडेक्सिंग करते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू S डॉट री इंडेक्स। ओके। री इंडेक्स में हमने क्या लिखा, एक न्यू इंडेक्स हम यहाँ जनरेट करेंगे, और वो मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है। अब न्यू इंडेक्स हम जो जनरेट कर रहे हैं उसमें एक लिस्ट आएगी, जो मैंने यही वाली लिस्ट दे दी, Ctrl+C Ctrl+V। और क्योंकि मेरे 5 एलिमेंट्स हैं तो मैंने क्या लिखा, EF। ठीक है, E नहीं है, F तक है। ओके। अब रीजनरेट करने के बाद, रीजनरेट करने के बाद मेरी जो लिस्ट आएगी, मेरी जो सीरीज आएगी, वो कैसे होगी, ऐसे। ठीक है, ABCDF। अब इसका मतलब ये नहीं है, एक बार आप यहाँ भी जरा हैव अ लुक ओवर देयर कि A की वैल्यू क्या है, 10, तो वो एज इट इज आई है यहाँ पर। D की वैल्यू 40 है, तो रीजनरेट होने के बाद D 40 पे यहाँ गया है, मतलब वैल्यू भी उठ के इंडेक्स के साथ चली गई है रीजनरेशन में, री इंडेक्सिंग में। F की वैल्यू 60 थी, तो यहाँ भी F की वैल्यू 60 ही है। ऐसा नहीं है कि 10 40 60 70 40 को आपके जो इंडेक्सेस हैं वो नए इंडेक्स जनरेट हो गए हैं, नहीं, री इंडेक्स हुआ है, शफलिंग हो गई है अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर, according to the new index which you have given as an argument inside your re-index। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं री इंडेक्सिंग के अंदर एक और इंडेक्स दे देती हूँ, तो उसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे नंबर ऑफ वैल्यूज एंड नंबर ऑफ इंडेक्सेस मस्ट मैच, अदरवाइज इंटरप्रेटर विल गिव यू द एरर। लेकिन री इंडेक्सिंग के केस में इंटरप्रेटर आपको एरर नहीं देगा, वो नल वैल्यू असाइन कर देगा एक्स्ट्रा इंडेक्स को। ठीक है। तो रन करते हैं एक बार, एंड आई गॉट माई रिजल्ट। क्योंकि ई के पास पहले भी कोई वैल्यू नहीं थी, एफ के पास वैल्यू थी, है ना, तो एफ की वैल्यू तो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, लेकिन ई को नैन वैल्यू असाइन हो जाएगी। और एक और डिफरेंस आपके डेटा के ऊपर आएगा कि डेटा आपका इंट से फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। ये मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन है, तो इसमें मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भी इंट से फ्लोट में क्यों जनरेट हुआ है, ये इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली मेमोरी को ऑप्टिमाइज करके और आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा री इंडेक्सिंग। In re-indexing, as we have seen that extra index will have the nan value, right? अब मुझे nan value नहीं चाहिए, nan value की जगह हमें कोई नंबर चाहिए, so I can have one argument over here, fill value is equal to 0 or any other number, both will work, right? अब मैंने nan value को किससे रिप्लेस कर दिया, 0 से। तो एक बार देखते हैं, will it work? It's working perfectly। ठीक है, ई में 0 आ चुका है। अब मुझे ये इंडेक्सेस नहीं चाहिए, माई अनदर कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे न्यू इंडेक्सेस में मैंने इंडेक्सेस चेंज कर दिए। ठीक है। मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5,
राइट, 5 वैल्यूज आर देयर एंड 5 इंडेक्सेस आर देयर। अब एक बार चेक करते हैं, विल इट वर्क? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे जो प्रीवियस इंडेक्सेस थे दोज वर अल्फाबेटिकल and they had the value 10, 20, 30, 40, right? But my new indexes are totally different. इसलिए मेरे सारे इंडेक्सेस में नैन वैल्यू आ चुकी है। और नैन क्यों आई है? बिकॉज दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ माई री इंडेक्सिंग, कि अगर इंडेक्सेस एक्स्ट्रा हैं तो उनके आगे नैन वैल्यू फिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, वो एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरे इंडेक्सेस जैसे ही चेंज हुए मेरी नैन वैल्यू आ गई, बट मुझे यही इंडेक्सेस चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे मेरे इंडेक्सेस को रीसेट करना पड़ेगा। एंड देयर इज अ मेथड एस इज इक्वल टू एस डॉट रीसेट इंडेक्स। ओके, इंडेक्सेस को हम रीसेट कर देंगे, और रीसेट करने के लिए आई नीड टू ड्रॉप इट फर्स्ट। तो आई हैव द आर्ग्यूमेंट ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू। ड्रॉप कर दिया। अब एक बार हम री इंडेक्सिंग को हटा देते हैं, क्योंकि अब यहाँ री इंडेक्सिंग आपका वर्क नहीं करेगा, अब यहाँ पे रीसेट इंडेक्स ही वर्क करेगा, राइट? अब रीसेट करने के बाद एक बार सीरीज को प्रिंट करके देखते हैं कि व्हाट इज माय आउटपुट। दिस इज, नाउ माय इंडेक्सेस आर रिमूव्ड एंड द डिफॉल्ट इंडेक्सेस हैज अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ दैट। तो रीसेट वर्क कर गया, ठीक है। अब रीसेट करने के बाद आई विश टू असाइन द न्यू इंडेक्सेस टू माय सीरीज। तो अब हम क्या करेंगे? री इंडेक्सिंग अभी भी वर्क नहीं करेगा, तो इसको हम परमानेंटली यहाँ से हटा देते हैं। एंड वी हैव एस डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू न्यू इंडेक्स, जो हमारे न्यू इंडेक्स थे। ओके, नाउ लेट्स रन इट। इट इज नाउ, पहले क्या आ रहा था एक बार देखें तो 0 1 2 3 4 आ रहा था, विच वॉज द डिफॉल्ट इंडेक्सिंग, बट नाउ I have my own assigned indexes in place of that. So this is the way if I wish to change the indexes. अब यहाँ एक और छोटा सा वेरिएशन है ड्रॉप की तरह। जैसे मैंने यहाँ असाइन किया रीसेट इंडेक्स को, I can have it without resetting without assigning as well, but I need to add in place is equal to true. अब इससे क्या होगा? असाइनमेंट के थ्रू तो मेरा नया जो सीरीज है वो जनरेट हो रही थी, ठीक है, लेकिन इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू में क्या होगा कि एट द सेम मेमोरी लोकेशन आई एम परफॉर्मिंग द चेंजेस परमानेंटली। ओके, so now let's run it again and it will work perfectly. So this is how we reset the index. Okay, तो हमने किया री इंडेक्सिंग कर सकते हैं, हम रीसेट इंडेक्स कर सकते हैं, एंड वी हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। एंड according to me, all the topics are covered from series. There is nothing left to be taught. Okay, but still, if any topic is there, you can write to me in the comment section, so I will prepare the video for that also. This is enough for the day, I guess. So thank you.